staff, and dear students. Good afternoon to all faculty members, staff, and dear students. Today I am going to present a topic on process of innovation development and technology readiness level (TRL) and commercialization of lab and tech transfer. Before this, I have also presented design and innovation. So first, let me introduce you what is an innovation. Innovation means transforming new ideas into useful products or services. See, everything was there before what we have now, but there were no innovations at that time. We could not be able to realize the potential. From the small soil piece, they got silicon. Silicon now an important part, critical part in chips. So, in economics also, we can see that going on. So new idea, new ventures, and new startup are coming. It is creating value to the customers and the society. It can be for the product, for the process, for the service, or business model innovation. So product can also be innovated. Service process can also be innovated. Additionally, service like banking, insurance, hotels and restaurants, tourism, they are also getting benefit from innovation. And even in the religious field also, we are innovators. As far as business is concerned, we have business model innovation. A business need model to grow for. So innovation is there also needed. This is business model innovation. Let me introduce you the types of innovation. Number first, incremental innovation. Number two, radical innovation. Number three, disruptive innovation. Number four, process innovation. Number five, product innovation. Without going into the details, let's come to the next slide. Stages of innovation development. The first stage is idea generation. Idea is a concept, is the विचार होता है idea. इंसान के जन्म में या साइंटिस्टों के जन्म में भी आइडियाज जो हैं वो आते रहते हैं, बल्कि उनमें अधिक आते हैं. साइंटिस्ट जो R&D करते हैं वो अधिक आते हैं. अब ये सब ऊपर वाले की जरूरत नहीं है. जो जिस फील्ड का पढ़ा होता है उसको उस फील्ड का भी आइडिया आता है. ये एडिसन हुए, रॉबर्ट हुक हुए, इन्होंने आइडियाज को अपने सब्सटेंशिएट किया. आइडियाज की स्टडी होती है, देन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होता है, देन फिजिबिलिटी स्टडी होती है, वेदर आइडिया इज सुटेबल और नॉट, एंड देन प्रोटोटाइप डेवलपमेंट होता है. जो लोग आईटी के हम जानते हैं व्हाट इज ए प्रोटोटाइप. देन टेस्टिंग की जाती है, वैलिडेट किया जाता है, कमर्शियल लॉन्च किया जाता है. स्टेज वन आइडिया जनरेशन. पहले ब्रेन स्टोरिंग की जाती है कि बहुत सारे लोगों के ख्यालात को जमा किया जाता है, बातचीत होती है और डिबेट होती है और उससे कुछ निष्कर्ष निकलता है. फिर मार्केट रिसर्च करते हैं, कस्टमर से फीडबैक लेते हैं. नंबर 4, R&D एक्टिविटी किया करते हैं. कस्टमर, एम्प्लॉइज, कॉम्पिटिटर्स, यूनिवर्सिटीज. Stage 2, आइडिया ट्रेनिंग. इसमें है पहला पॉइंट, इवैल्यूएट द टेक्निकल फिजिबिलिटी.
feasibility can be technical as well as financial as well as marketing also. If you study any project evaluation paper, you can now see in production and operation, technical feasibility is the very much needed. Then check market demand. Then we have cost benefit analysis. Then we have risk assessment. Stage 3, concept and feasibility. विचार, concept कहते हैं विचार को. अब फिर वो feasible है कि नहीं? Suitable से feasibility होती है feasible. फैमिली के जहन में तो बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन जो स्टार्टअप कर जाते हैं, तो अब पिज्जा जो है आइडिया ही तो था. पहले लोग ब्रेड खा रहे थे, रेस्टोरेंट में जाए उस पर टॉपिंग डाली गई, सिर्फ वेज डेवलप किया गया, वेज और नॉन वेज किया गया, तो इनोवेट किया गया. वर्ड द कॉन्सेप्ट लाए पिज्जा ने कोई की. अपने यहाँ में सीमांत को याद है 10 साल पहले 12 साल पहले छोटा सा पिज्जा तैयार हो रहा, तो कई दुकानें कुछ चने दूध नहीं करें. आज डॉमिनोज पिज्जा है, तो किसी का इनोवेशन नहीं होगा कि पिज्जा लोग खा सकते हैं. आगे बढ़ो. डोमिनोज पिज्जा है, टेस्ट डेवलप किया गया. दूसरा टेक्निकल फिजिबिलिटी. टेक्निकली तौर पर कितना सूटेबल है ये इनोवेशन. तो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, कितना कॉस्ट हम इंकर करेंगे तो हमको कब प्रॉफिट आने लगेगा. देन विल द प्रॉफिट बिगिन. फिर रिसोर्स रिक्वायरमेंट एनालिसिस. रिसोर्सेज क्या है हमारे बिजनेस को, कॉन्सेप्ट को या टेक्नोलॉजी को या कोई टेक्निकल प्रोडक्ट को या प्रोसेस सर्विस को, रिसोर्सेज को कहाँ मिलेगी, इसकी स्टडी की जाती है. प्रोटोटाइप डेवलपमेंट मॉडल होता है, बिजनेस एक मॉडल होता है स्पेस मैक्सिमाइजेशन का या एसेट मैक्सिमाइजेशन का या रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का. वैसे ही जो है एक मॉडल बनाया जाता है उस टेक्निकल आइडिया की, उसकी लैब में टेस्टिंग की जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल लैब टेस्टिंग जब आप करते हैं तो पता चलता है कि आपका आइडिया जो है मॉडल है उस पर सूटेबल हो पा रहा है कि नहीं. फिर डिजाइन में इंप्रूवमेंट्स आते हैं, जरूरत होती है. फिर परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करते हैं कि हमने जो किया वो कितना अच्छा हुआ या नहीं. स्टेज 5 टेस्टिंग एंड वैलिडेशन. आप लोग जो आईटी के अंदर बीटा टेस्टिंग होती है सॉफ्टवेयर की, क्वालिटी टेस्टिंग होती है, हर चीज में क्वालिटी रिक्वायर्ड होती है. फिर कस्टमर का ट्रायल होता है. कस्टमर के लिए कस्टमर बैंक हुए, कोई होटल है, रेस्टोरेंट है, उसके यहाँ वो सॉफ्टवेयर या वो आईटी का प्रोडक्ट है वो ट्रायल कर सकता है कि नहीं सकता है. फिर रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए होते हैं. रेगुलेशन हर चीज में होता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, लाइसेंस मिलता है. अब कम हो गया, पहले इस जमाने में रेडियो को भी लाइसेंस था. ये बता रहे हैं आपको 80 से पहले की बात. आपको न्यूज सुनना हो उसके लिए लाइसेंस था, अब बहुत कम हो गया लाइसेंस. अभी लाइसेंस बाकी हर चीज टेक्नोलॉजी भी लाइसेंस देने पड़ते हैं. पेटेंट का स्टेज 6 कमर्शियल लॉन्च. प्रोडक्शन प्लानिंग की जाती है, प्रोडक्शन कैसे हुआ, कितना यूनिट होगा, और यूनिट का मार्केट की स्ट्रेटजी दी जाती. ये प्रोडक्शन होगा तो मार्केट में कैसे खपाया जा सके, कैसे उसको भेजा जा सके. फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेटअप होगा. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एजेंट्स अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे कैसे एफएमसीजी के होते हैं, इसके भी होते हैं. फिर पोस्ट लॉन्च रिव्यू होता है. अगर सेकंड टॉपिक टेक्नोलॉजी रेडियस लेवल TRL. टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका एक मेजरमेंट सिस्टम है TRL, जो टेक्नोलॉजी की मैच्योरिटी को असेस करता है. ठीक है, इसको नासा ने जो है वो TRL के लेवल से 1 to 9 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑब्जर्व. टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेटेड, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, दैट एक्टिव सिस्टम. 1 to 9 लेवल है TRL के.
इम्पोर्टेंट तो ये है कि रिस्क रिड्यूस करता है, इन्वेस्टर्स को इवैल्यूएट करने देता है, टेक्नोलॉजी गाइड करता है फंडिंग डिसीजन में, इंप्रूव करता है कमर्शियलाइजेशन सक्सेस को। TRM is innovation process. TRM 1 to 3 जो है वो रिसर्च फेज है, फिर 4 to 6 जो है डेवलपमेंट फेज है, 7 to 9 कमर्शियलाइजेशन फेज है सॉरी। अब लैब टेक्नोलॉजी को डिजाइन कर दी, प्रोडक्ट डिजाइन कर दिया, प्रोसेस डिजाइन कर दिया, नया इनोवेशन कर दिया, नया प्रोडक्ट ला दिया। अब उसका कमर्शियलाइजेशन करना, कैसे वो कॉमर्स के मेन स्ट्रीम में दाखिल होगा, कैसे वो प्रोडक्ट जनरेट करके एस्टेब्लिश हो जाए। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ लैब means converting laboratory research into marketable product or services। लेबोरेटरी में रिसर्च करते आपने देखा होगा घड़ी का बाजार आया करता है, जिसमें अमिताभ बच्चन कौन से पहले उसमें क्या था कि लैब में दिखाया था कैसे जो स्टीम लाल डब्बे में दूसरे प्राप्त हो गया। तो मार्केटिंग के साथ साथ इनोवेशन जो हो रहा है वो दिखाया जाता है। इनोवेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं होता है, इनोवेशन प्रोडक्ट में भी होता है, हॉस्पिटल में भी होता है, सर्विस में भी होता है, एयरलाइन में भी होता है, और इंडस्ट्री के हर जगह में इनोवेशन नहीं होता है। कंप्यूटर साइंस जो इसकी जनक है, जो इसकी शुरुआत जिन्होंने की, उन्होंने कहा था इनोवेशन जो है ग्रोथ की जरूरी है। वो ग्रोथ एक आदमी का हो, वो ग्रोथ चाहे जो है वो एक पूरी इकोनॉमी, गुड इकोनॉमी में ग्रोथ भी आप सस्टेन करते हैं, वरना क्या होगा, क्या सस्टेन नहीं करता। स्टेप्स इन कमर्शियलाइजेशन, रिसर्च एंड डिस्कवरी, पेटेंट फाइलिंग, R&D कर लिया, फिर पेटेंट देना पड़ता है, ये टेक्नोलॉजी या ये प्रोडक्ट है हमारा अपना है। बिग सिटी आपको बता सकता है, ब्रिटेनिया को पेटेंट मिला हुआ डिजाइन का, तो पेटेंट फाइलिंग किया, प्रोटोटाइप डेवलप किया जाता है, मार्केट में एनालिसिस की जाती है, फंडिंग इन्वेस्टमेंट किया जाता है, पैसा लगाया जाता है, फिर लाइसेंस किया जाता है और मार्केट की एंट्री कराई जाती है। Methods of commercialization, licensing to companies, then technology transfer। कंपनीज को लाइसेंस जो है वो मिलता है इस प्रोडक्ट का या प्रोसेस का या टेक्नोलॉजी का या जो है वो बिजनेस मॉडल का। इसीलिए R&D में हर बात जो है छुपा के करी जाए, क्यों कि दूसरा कॉपी कर लेगा। पेटेंट ऑफिस तक पहुंचने से पहले तो वो टेक्नोलॉजी को लोग कॉपी कर लेते, इसलिए जो है वहाँ पर पहला काम तो काम सारा खुद का होता है। लाइसेंस मिल गया होता है, लाइसेंस मिलने से पहले ही पेटेंट को करा ले। पेटेंट ऑफिसर होती है, प्रोफेसर होती है, वहाँ अप्लाई किया जाता है, टेस्ट करने की पहले किसी ने तो नहीं कर रखा है, आप उसकी कॉपी तो नहीं कर रहे हैं, चेक करते हैं। फिर जॉइंट वेंचर होते हैं, स्टार्टअप होते हैं। रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज का रोल है, यूनिवर्सिटीज में R&D होता है। फिर रिसर्च लैब क्या करते हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज में, IIT वगैरह में होते हैं, बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेज हैं, पुराने हैं। इंक्यूबेशन सेंटर होता है, यहाँ पर इसको डेवलप करके लिए तरीका अपनाया जाता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिसर, चैलेंजेस इन लैब कमर्शियलाइजेशन, गैप को फंड किया जाता है, अप्रूवल दिए जाते हैं रेगुलेटरी सरकार से, संस्थाओं से। मार्केट रिस्क तो होता ही है, तो कितना बड़ा पेटेंट ले ले, कितना बड़ा प्रोडक्ट अच्छा कर ले, मार्केट का रिस्क होता है। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी में
बहुत सारी कंपनीज होती है, लेकिन और बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं कंपनी, लेकिन सारे प्रोडक्ट जो है उनके सक्सेसफुल नहीं, कुछ ज्यादा दिखती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में रिस्क और लोगों की पसंद, लोगों का कंज्यूमर का बिहेवियर दूसरा होता है। सर है होता है कि मनी जाए ज़्यादा ले लो, बार बार पैसा मिलता रहता है, ठीक है। तो लैक ऑफ इंडस्ट्री कोलैबोरेशन चैलेंजेस है, टेक्नोलॉजी फेलियर, टेक्नोलॉजी ऐसा ना हो कि स्टार्टअप जो है फेल कर नहीं चल पाए, ऐसा होता है। बहुत सारे स्टार्टअप आए, बहुत सारी .com कंपनीज आई 90s में, लेकिन वो कंपनीज जो है फेल भी की, बबल में था वो बस्ट किया। .com को ले लो, ई कॉमर्स हंगामा था 90s के बाद 2000 के आसपास एक हंगामा चल रहा था। आप वो छोटे होंगे, लेकिन हम लोगों ने देखा है वो .com कंपनियां जो है वो फेल हो रही थी, करोड़ों का नुकसान हो रहा है, उनकी टेक्नोलॉजी जो फेल कर रही है। आज भी IT में जो है टेक्नोलॉजी बहुत तेज से बढ़ा है, 6G 7G पे बात कर रहे हैं, फोन बर्बाद हो रहे हैं, कंपनियां फेल कर रही है बनाने के बाद। बेनिफिट्स क्या होता है कमर्शियलाइजेशन का? देश का इकोनॉमिक ग्रोथ, नई टेक्नोलॉजी अगर ली जाती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उस कंपनी का भी और उस कंट्री का। आज चाइना या साउथ कोरिया कार्य बिकती है अपने यहाँ, क्या कारण है? तो सोचा वैसे तो $4 बिकती है जैसे, जो उनके यहाँ जो है वो ऐसा बना देते हैं कि आप इनोवेट करते रहते हैं इंडियंस में और डिजाइन में, कलर्स में, और इनोवेशन के बिना चलता नहीं। इनोवेशन के बिना ग्रोथ नहीं हो सकता, ना किसी इकोनॉमी का और ना किसी कंपनी का, ना किसी एक स्टार्ट का। तो उर्दू में उसको बिजार कहते हैं, लेकिन इनके बिजार दूसरी मानी में है। लेकिन जहाँ दुनियावी जिंदगी में कह सकते हैं हम इनोवेशन के बगैर चलेगा नहीं। दुनिया मूवमेंट चाहती है, लोग चाहते, पब्लिक चाहती है, देश के लोग भी करेंगे, जॉब क्रिएशन होता है, फैक्ट्री रहेगी, जॉब क्रिएट हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, जॉब क्रिएट हो, तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है, नई नई इंडस्ट्रीज आती है। आज तो देखा आप लोगों ने फ्लैट रिपोर्ट बहुत बनता है, आज से 10 साल पहले इतना नहीं बनता, कैसे पॉसिबल होता है? इंडस्ट्री डेवलप करेगी, लोगों ने चीज सस्ते में लगाना शुरू कर दिया। अब वो आज तो लेबर था कागज वाले से, कागज वाला जो है वो ड्यूरेबल नहीं था, फ्लैट रिपोर्ट बनने लगे, पूरी इंडस्ट्री हो गई। इंस्टीट्यूशंस के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है, यानी जो कंपनी करेगी, जो संस्था कर रही है, तो पूरी रेवेन्यू आता है। सोशल इम्पैक्ट भी होता है, आजकल दूध का बैग दूध होता है, तो सोशल इम्पैक्ट भी तो है कि देश को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, एनवायरमेंट को बचाना है। कंक्लूजन में हम क्या करते हैं कि इनोवेशन डेवलपमेंट फॉलो सिस्टमैटिक स्टेजेस कि आर हेल्प मेजर टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी, टेक्नोलॉजी का मैच्योर परफेक्ट, लैब कमर्शियलाइजेशन ट्रांसफॉर्म रिसर्च इनटू रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। लैब का जो कमर्शियलाइजेशन होता है वो रिसर्च को रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट डालता है। सक्सेसफुल कमर्शियलाइजेशन रिक्वायर्स प्लानिंग, फंडिंग एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। सक्सेसफुल कमर्शियलाइजेशन जो होता है प्लानिंग चाहता है, फंडिंग चाहता है और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। प्लानिंग के बिना अच्छा काम नहीं किया, सरकारें भी प्लानिंग करती हैं, कंपनी भी प्लानिंग करती है। कोई कंपनी स्टार्ट किया है तो प्लानिंग की जाती है, आप सुबह उठते हैं तो प्लान करते हैं, आज आप कहाँ जाना है, मार्केट जाना है, नहीं जाना है, ठीक है। तो प्लान बहुत जरूरी है, फंडिंग भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, ठीक है। वेरी थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी एंड थैंक यू ऑल।